Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's me Inamul Shakhtai, your teacher of physics, and we have to study the next topic of AC through capacitor of the chapter number 16. Let's start our topic. Just before starting the topic, we have to view some points that we have to keep in mind while we are discussing AC through capacitor. And these points, first of all, we have to understand what is capacitor. Then next of we have to study what is the capacitive circuit and what is the circuit diagram of the capacitive circuit. The next we have to understand a question: can AC flow through the capacitor? And the next is the explanation. The main topic of this heading AC through capacitor, the main topic that we have to discuss is the explanation, because all of the topics that we are discussing in this chapter regarding circuits, we have to understand, we have to discuss the values of the voltage and the current. Our main concern would be the value of the voltage and the current, and same we have to discuss in this explanation. Next we have to understand the idea of the slope of the curve. That is no doubt simple and somewhat new and the novel and interesting as well, and you may have an idea the slope of the curve. Next we have to discuss the wave diagram for AC through capacitor. The next is the phasor diagram. The next is the capacitive reactance, and at the end we have to discuss the power dissipation through capacitive circuit. So first of all, we have to start our topic, that is the capacitor. But just before starting this topic, students, you can see the pages of your big book on the slide, and all the topic in this page is written continuously without any key point, without any heading, without any point, and it becomes a problem for the students to understand what they have to write in the paper in the annual examination hall. So we have divided all the topic into key points and the different points to make you understand better of this topic. So first of all, we have to discuss what is a capacitor. In chapter number 1 of this book, means the 12 of this book of part second book, we have studied about the capacitor. Capacitor was defined as the device that has the capability, or it has the capacity to store the energy or the charge in the form of the electric field. Next, when the charges are stored on the capacitor, it produces potential difference, means it has a static voltage across the plates, much like the small rechargeable battery. And the third point that we have to keep in mind, its relation between the Q and the V. You know very well the charge stored on the capacitor is directly proportional to the value of the voltage that is connected across the plates of the capacitor. Next point is, what is capacitive circuit? Simple as an AC circuit having the capacitor as a component in it, this is called the capacitive circuit. Means एक ऐसा सर्किट जिसमें अल्टरनेटिंग करंट के साथ एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उसको हम कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं. अगला पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ दिस कैपेसिटिव सर्किट, और वो सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई है. ये सर्किट डायग्राम है कैपेसिटिव सर्किट की. सिंपल एंड एसी सोर्स इज कनेक्टेड विद द कैपेसिटर, एंड द डबल हेडेड एरो basically shows the direction of the current. We know very well the current flowing through the circuit will be the alternating current, and alternating current go on changing its polarity, means during the positive half cycle it flows in one direction, and during the negative half cycle it changes its polarity and it flows in the other direction. So that's why the blue double headed arrow is shown for the direction of the current through this circuit diagram. Next we have to answer the question, can an AC flow through the capacitor? No doubt its answer is yes, but what is the reason? To understand the reason, the idea behind this, the three diagrams are given in this page. Number 1, A, B, and the C. The C is the sine curve, means it shows the voltage curve that is having the half cycle positive and the half cycle negative. And the two other diagrams, A and the B, on the top have been shown. During the positive half cycle of the voltage curve, if we are looking on the diagram A on the left side, the left plate of the capacitor is positively charged, and the
राइट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज नेगेटिव चार्ज, मीन्स के पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, जो हमें डायग्राम ए में दिखाई गई है। और इस कंडीशन में कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट है वो पॉजिटिव है और जो राइट प्लेट है वो नेगेटिव है। इसी तरह ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल हमें डायग्राम बी दिखाई गई है, और उस बी में जो लेफ्ट प्लेट है जो पहले पॉजिटिव थी अब वो बी में आके नेगेटिव हो गई है, और जो राइट प्लेट जो पहले नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव और द नेगेटिव हाफ साइकिल द कैपेसिटर go on changing go on showing or having the charging and the discharging of these plates, and in this way the current can flow through the सर्किट। एक चीज़ याद रखिएगा, अल्टरनेटिव करंट में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता, करंट दोनों डायरेक्शंस में बैक एंड द फोर्थ मूव करता है। लिहाजा जिस पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो प्लेट पॉजिटिव होगी वो अगले हाफ साइकिल में वो नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह ये कैपेसिटर एसी को गुजरने की इजाज़त देता है। ये चीज़ बिल्कुल अपोजिट है डायरेक्ट करंट के मुकाबले में, जहाँ पे करंट एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है, वहाँ वो अपनी पोलैरिटी बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव नहीं करता, एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है। और अगर उसके रास्ते में कोई कट आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो वहाँ से करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। ये डीसी सर्किट की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे आपको उसकी एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिखाई गई है टू जज आर द प्रूव दैट द एसी कैन फ्लो थ्रू द कैपेसिटिव सर्किट। अब यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई गई है, इस डायग्राम में सॉरी टू से कैपेसिटर मिसिंग है। तो यहाँ पे एक एसी सोर्स होना चाहिए, एक कैपेसिटर होना चाहिए और साथ में एक बल्ब होना चाहिए। जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा, और बल्ब का ऑन होना ये इंडिकेट करता है कि इसमें से करंट फ्लो करता है। अब राइट साइड पे जो डायग्राम दिखाई गई है, उस राइट साइड की डायग्राम में बेसिकली ये डीसी करंट दिखाया गया है, एक डीसी सोर्स दिखाया गया है जिसमें डायरेक्ट करंट है जो कि एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कैपेसिटर की दो प्लेटों के दरमियान गैप है, इंसुलेटर है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक मूव नहीं कर सकते। अगर इसी हालत में एक बल्ब लगा दिया जाता है इसके साथ, तो बल्ब इनिशियली कुछ देर के लिए ग्लो करता, और ये देर उतनी देर होती जितनी देर में ये प्लेट्स जो होती हैं वो चार्ज स्टोर करती हैं। लेकिन जब चार्ज स्टोर हो जाता और मज़ीद चार्जेस का मूव करना या प्लेट पे डिपॉजिट होना नामुमकिन हो जाता, तो फिर जो बल्ब का ग्लो जो है वो भी ख़त्म हो जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट करंट होता है वो कैपेसिटर में से नहीं गुजर सकता, जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो कैपेसिटर में से गुजर सकता है। नेक्स्ट हमारी है एक्सप्लेनेशन के हवाले से सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है, जो बेसिक रिलेशन है वो Q और V का है। ये रिलेशन जो Q और V का है ये हमने कैपेसिटर के लिहाज से लिया है, और हमें पता है कि कैपेसिटर के लिए Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इज इक्वल टू CV होता है। ये क्वेश्चन Q इज इक्वल टू CV हमें क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज V किसके बराबर होती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये क्वेश्चन जाहिर करती है कि वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज़ अ फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा टी। इसका क्या मतलब बनता है, इसके सेंस से बनती है कि वोल्टेज का जो कर्व है वो साइन कर्व को मैच करेगा, उसको फॉलो करेगा। इसी तरह अगर इस V की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया जाए तो हमारे पास Q इज इक्वल टू CV नॉट साइन ओमेगा टी बनेगा। अगेन इस इक्वेशन में देखें Q भी जो है वो फंक्शन है साइन ओमेगा टी का। इसका मतलब यह है कि Q का जो कर्व होगा वो भी साइन कर्व को फॉलो करेगा। तो ये दोनों साइन कर्व को फॉलो कर रहे हैं, V भी और Q भी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि Q एंड द V आर इन फेज। उसके बाद अगर हम करंट की बात करते हैं तो बाय डेफिनेशन करंट क्या होता है, बाय डेफिनेशन करंट इज इक्वल टू द डेल Q बाय डेल टी। डेल Q बाय डेल टी का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द Q एंड द T, तो डेल Q बाय डेल टी बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो उस ग्राफ के स्लोप से हम I की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू डेल Q बाय डेल टी से मैं ये कंक्लूजन निकालूंगा कि वैल्यू ऑफ द I एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द QT कर्व। और रेड लाइन में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ड्रॉ करें a curve between the Q and the T, then at any instant the slope of the curve will give us the value of the current। slope क्या होता है हम आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं। इसमें हमें इस डायग्राम में हमें जो दो कर्व्स दिखाए गए हैं वो V का है और Q का है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया, हमने बोला कि Q और
जो वी हैं दोनों जो है वो फंक्शन है साइन ऑफ थीटा के, मीन्स ये साइन कर्व को फॉलो करते हैं, लिहाजा ये दोनों इन फेस होंगे, दोनों एकदम एक साथ अपनी पीक वैल्यू को अटेंड करते हैं और दोनों एक साथ अपनी जो है वो जीरो वैल्यू को अटेंड करते हैं। उसके बाद हमने अंडरस्टैंड करना है आइडिया ऑफ द स्लोप ऑफ द क्यूटी कर्व। आइडिया ऑफ द स्लोप ऑफ द क्यूटी कर्व में बेसिकली हम बात करते हैं कि स्लोप क्या होता है। एक आम आदमी के लिए अगर स्लोप को समझाना पड़े तो हम स्लोप को कहेंगे कि स्लोप एक ढलान है, एक ढलवान है। लिहाजा ढलवान पर चढ़ना कब मुश्किल होगा, जब ढलवान बहुत ज़्यादा होगी। जैसे स्टीप रॉक का कंसेप्ट है, बिल्कुल वो खड़ी चट्टानें जो होती हैं वहाँ पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट रखना है कि जहाँ पे ढलवान बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हमारा चलना बहुत मुश्किल है। सपोज़ हम यहाँ पे जो एक कर्व बना रहे हैं रेड कलर का, सपोज़ ये क्यू का कर्व है और इस क्यू के कर्व के ऊपर हमने एक चलता हुआ आदमी दिखाया है। अब इस आदमी को चलने में कहाँ पे मुश्किल होगी, जहाँ पे ढलवान बहुत ज़्यादा है वहाँ पे मुश्किल बहुत ज़्यादा होगी। जहाँ पे ढलवान बहुत कम है, जैसे चोटी पे पहुँच जाए तो वहाँ पे तो ढलवान बिल्कुल नहीं होगी, वहाँ पे तो बिल्कुल फ्लैट चल रहा होगा वो, तो वहाँ पे उसके पास स्लोप बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जब वो चोटी से फिर नीचे उतरेगा तो फिर स्लोप एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये स्लोप डाउनवर्ड जो है ना वो बढ़ रहा होगा, शुरू में स्लोप अपवर्ड जो है ना वो बढ़ रहा होगा। तो इस तरह से हम एक आइडिया ऑफ द स्लोप को इस तरह पकड़ते हैं कि जहाँ पे ढलवान ज़्यादा है, जहाँ पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, जहाँ पे चढ़ाई बहुत मुश्किल है, वहाँ पे स्लोप की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, और जहाँ स्लोप की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे करंट की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। तो हमें राइट कॉर्नर में भी एक ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ में अगेन जो हमें कुछ पॉइंट्स दिखाए गए हैं, जैसे रेड कलर का जो कर्व दिखाया गया है राइट कॉर्नर में, वो ओ से शुरू होता है, बी पे जाता है। ओ वो पॉइंट है जहाँ पे इसकी ढलवान मैक्सिमम है, बी वो पॉइंट है जहाँ पे इसकी ढलवान, इसका स्लोप बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। लिहाजा ओ जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है, ढलवान मैक्सिमम है, उसके ऊपर देखें पॉइंट ए पे आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, वहाँ पे ग्रीन कर्व शुरू हो रहा है करंट के हवाले से, तो वहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मीन्स जहाँ पे स्लोप ज़्यादा है वहाँ पे करंट भी ज़्यादा है। और जहाँ पे स्लोप ढलवान ऊपर टॉप पे देखें रेड कलर बी पॉइंट पे, जहाँ पे स्लोप ज़ीरो है वहाँ पे फिर वो जो करंट की लाइन है ग्रीन कलर की वो कम होती हुई वो नीचे ज़ीरो पे आ जाती है। तो जहाँ पे स्लोप ज़ीरो है वहाँ पे करंट की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है। तो इस तरह आप एक स्लोप के कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि बेसिकली इसमें स्लोप जो है वो क्या चीज़ है। स्लोप को हम एक ढलवान के सेंस में जो है वो समझ सकते हैं। ये बेसिकली एक जस्ट एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपको कंसेप्ट दिया गया है कि आप स्लोप को समझ सकें और ये आइडिया रखें जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है वहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगेन यहाँ पे हमें जो वेव डायग्राम दिखाई गई है हमारे एसी थ्रू कैपेसिटर्स के हवाले से, इसमें 3 वेव फॉर्म्स दिखाए गए हैं, एक ब्लू, एक ब्लैक कलर का, एक पिंक कलर का। जो ब्लू है वो हमें जो है वो दिखाया गया है वोल्टेज के हवाले से, और ब्लैक कलर है वो क्यू के हवाले से, और जो पिंक कलर है या गालिबन रेड कलर है वो है करंट के हवाले से। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि V एंड द Q आर इन फेज, लिहाजा ये दोनों अपनी पीक वैल्यूज़ को एक साथ अचीव करेंगे और एक साथ जो है ना वो ज़ीरो पे पहुंचेंगे, फिर एक साथ नेगेटिव पीक वैल्यूज़ को अचीव करेंगे। और हम अभी कंसेप्ट का मतलब कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट O पर स्लोप जो है वो मैक्सिमम है, लिहाजा जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगा वहाँ पे जो है वो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। इस ग्राफ के अंदर आपने O, A, B, C और D ये चंद पॉइंट्स हैं जिनको आपने डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर पॉइंट O की बात करते हैं तो आप O के बारे में कहेंगे कि O पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ द क्यूटी कर्व है वो बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, ढलवान बहुत ज़्यादा है, लिहाजा यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो करंट की वैल्यू हमें पॉइंट P पे दिखाई गई है जो कि मैक्सिमम है। इसी तरह जब हम पॉइंट A पे पहुँचते हैं, पॉइंट A पे वो बिल्कुल पीक पे आ गए, चोटी पे आ गए, पहाड़ की चोटी पे बिल्कुल ढलान नहीं होती, लिहाजा स्लोप ख़त्म हो गया। जहाँ पे स्लोप ख़त्म हो गया वहाँ पे करंट की वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू कम होती हुई P से N पे आ जाती है। इसी तरह जब आप B पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो अगेन जब आप A से B पे जाएंगे आपका स्लोप जो होगा वो बढ़ रहा होगा, लेकिन ये डाउनवर्ड है, नेगेटिव सेंस में है, लिहाजा आपकी करंट की वैल्यू G वो भी बढ़ रही होगी और वो भी नेगेटिव होगी। तो आप N से लेके R तक आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट आप जब मूव करते हुए B से लेके C तक आएंगे तो करंट की वैल्यू आपकी R से लेके S तक पहुंच चुकी होगी। इसी तरह आप इसको डिस्कस करेंगे और उसमें स्टेप बाय स्टेप तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा और एट द एंड कंक्लूजन ये बनेगा कि करंट इज लीडिंग दी अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियंस।
फेज़र डायग्राम हमें दिखाया गया है। फेज़र वाले टॉपिक में हमें पढ़ा था कि फेज़र क्या होता है। जब अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ को वेक्टर्स की सेंस में दिखाया जाता है तो इसको हम फेज़र बोलते हैं। फेज़र बेसिकली दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक है फेस, एक है वेक्टर। तो फेस बेसिकली एंगल के लिए है, वेक्टर जो होता है वो हमारे पास जो है वो एक क्वांटिटी है। इसमें फेज़र में हमारी सेंस ये बनती है कि हम अल्टरनेटिव क्वांटिटी को वेक्टर्स के लिहाज से रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा हमारे पास दो अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ जहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई हैं, करंट एंड द वोल्टेज, और हम उनको जो है वो फेज़र में दिखा रहे हैं। फेज़र वाले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर किसी अल्टरनेटिव क्वांटिटी की वैल्यू ज़ीरो हो तो उस वक्त उसके वेक्टर को हम हॉरिजॉन्टली जो है वो पोजीशन में दिखाएंगे, और अगर किसी अल्टरनेटिव क्वांटिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो तो उसके वेक्टर को हम वर्टिकली अपवर्ड दिखाते हैं। तो पॉइंट ओ को आपने डिस्कस करना है। पॉइंट ओ को और से देखें, आपके वोल्टेज की वैल्यू क्या बनती है। पॉइंट ओ पे आपके वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो बनती है, लिहाजा जो वोल्टेज कर्व होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, जो डायग्राम में दिखाया गया है। अगेन पॉइंट ओ पे आप करंट की वैल्यू देखें क्या बनती है। पॉइंट ओ पे करंट की वैल्यू जो पर्पल कर्व है वो मैक्सिमम वैल्यू गुजार करता है, लिहाजा जो आपका पर्पल वेक्टर होगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा, और ये दोनों वेक्टर आपस में 90 के एंगल पे होंगे। मीन्स के इनके दरमियान जो फेस शिफ्ट है या फेस डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। उसके बाद हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि रेजिस्टेंस का है, लेकिन यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करेंगे, जिसको हमने XC से ज़ाहिर किया है। और इसकी डेफिनेशन हम उन्हीं वर्ड्स में करेंगे कि बेसिकली इट इज़ द मेजर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ द AC, एंड इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द XC। XC की वैल्यू किसके बराबर होती है, वही कंसेप्ट, वही आइडिया ओहम्स लॉ वाला कि R इज इक्वल टू V बाई आई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे X इज इक्वल टू VRMS ओवर IRMS, और इसके यूनिट जो होंगे वो ओहम में होंगे। XC की वैल्यू 1/2πfc के बराबर होती है। मीन्स XC की वैल्यू 1/ωc के बराबर होगी, और ये रिलेशन हमें बताता है कि XC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मीन्स जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वहाँ पे XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम होगी, और जहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी वहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो एट हाई फ्रीक्वेंसी द अपोजिशन इन द करंट विल बी लो देन द करंट विल बी मैक्सिमम। तो हम ये कह सकते हैं कि इस किस्म के जो कैपेसिटिव सर्किट्स होते हैं वो बेस्ट वर्क करते हैं विद द हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे इनकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी और करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बिल्कुल यही कंसेप्ट हमें नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है, जहाँ पे हम एक रिलेशन बिटवीन द XC, F एंड द I डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है, वर्टिकल एक्सिस पे हमें करंट दिखाया गया है, और ये जो हमें एक कर्व जो है ना वो एक बेंड करता हुआ कर्व दिखाया गया है वो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस का है, XC का है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होती है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ब्लू कलर का जो कर्व है वो कम होता हुआ दिखाया गया है। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस मीन जो अपोजिशन है इन द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द AC जब वो कम होगी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसा पर्पल कर्व जो है वो बढ़ता हुआ दिखाया गया है। इन ग्राफों को जो ड्रॉ किए गए हैं गौर से समझिएगा, क्योंकि ये आपके टॉपिक को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है जी पावर डेसिपेशन का। चैप्टर नंबर 3 में हमने पावर डेसिपेशन के लिए मुख्तलिफ इक्वेशंस पढ़ी थी। P इज इक्वल टू I² बाय R, P इज इक्वल टू V² बाय R एंड P इज इक्वल टू IR। अगेन जो पहली इक्वेशन है वो जब करंट कांस्टेंट हो तो अप्लाई होती है, सेकंड इक्वेशन वोल्टेज कांस्टेंट में अप्लाई होती है, और थर्ड इक्वेशन जो हमारी जनरल इक्वेशन है वो हम किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। और पावर जब पॉसिबल होती है इसका मतलब ये कि पावर डेसिपेट हो रही है, वेस्ट हो रही है, इट इज़ नॉट बीइंग डिलीवर्ड टू द सर्किट। और जब पावर नेगेटिव होगी इसका मतलब ये है कि ये ना डेसिपेट हो रही है ना ज़ाया हो रही है, बल्कि ये सर्किट में डिलीवर हो रही है। इन कंसेप्ट के लिहाज से हमने जो है वो पावर डेसिपेशन कैलकुलेट करनी है। यही कर्व जो हमने अभी डिस्कस किया था बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, हम उसको दोबारा बना रहे हैं, और हमने उसके हर एक सेगमेंट को, मतलब इस लूप को, साइकिल को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, और हर एक सेगमेंट को हमने अलग अलग से डिस्कस करना है। आपकी आसानी के लिए हर एक सेगमेंट के ऊपर उसकी वैल्यूज़, उसकी पावर की कैलकुलेशंस लिखी गई हैं। जैसे फर्स्ट सेगमेंट के ऊपर आपको फर्स्ट जो क्वार्टर है उसके ऊपर लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि जो मिड लाइन है, मिड लाइन के ऊपर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी, मिड लाइन से नीचे जो वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव होंगी। लिहाजा जो फर्स्ट क्वार्टर डिस्कस किया गया है उसमें जो वोल्टेज है, जो रेड या कुछ मेजेंटा टाइप कलर या ब्राउन कलर जो दिखाया गया है, ये इस जो है ना वो ऊपर वाली मिड लाइन की ऊपर वाली लाइन पे है। मींस के वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है। तो जब करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव होंगे तो पावर इज इक्वल टू IV होता है। लिहाजा पावर जो है वो पॉजिटिव IV होगा, तो पावर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि
पावर जो है वो बेसिकली स्टोर नहीं हो रही है, पावर जो है वो डिलीवर हो रही है। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो दिखाया गया है, उसमें अगेन हमारे पास जो आई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, वी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पावर हमारा जो होगा वो एक्सप्रेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह जो हमारा तीसरा क्वार्टर है उसमें आई भी नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव है, और अगेन पावर जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे अगेन पावर जो है वो स्टोर होगी, मतलब उसमें वो एनर्जी को स्टोर करेगा। और नेक्स्ट जो है वो फोर्थ साइकिल में अगेन जहाँ पे पावर नेगेटिव होती है तो वो पावर डिलीवर करता है टू द सर्किट। तो इस तरह ओवरऑल देखा जाए पावर डेसिपेशन जो होती है वो ज़ीरो होगी या एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। तो ये हमारी पावर डेसिपेशन के हवाले से डिस्कशंस थी। ये हमारा टॉपिक का एंड हुआ, और विश यू बेस्ट ऑफ लक, और अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।